Hello students, so in this class we are going to perform another physics experiment. So the aim of this experiment is we have to find out loss in weight of any solid immersed in tap water, right, and find weight of the water displaced. Okay, so to understand this aim, what is the meaning of this aim, you must know about Archimedes principle. So you must understand the theoretical part, तभी आपको इसका aim समझ आएगा और तभी आप इसको कर पाएंगे. Okay, so in last experiment we studied that when any solid is immersed in water, the volume of water displaced is equal to volume of the solid. Means आप किसी भी चीज़ को वाटर में डालते हैं तो जितना वाटर का वॉल्यूम ऊपर आता है, जितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, वही वॉल्यूम सॉलिड का होता है. ठीक है, कोई भी सॉलिड हो, कोई भी चीज़ हो. तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. In this class we shall study Archimedes principle in more detail, that what is actually Archimedes principle. For that you should know about a few things. First thing is weight. So what is weight? You know that weight is not mass, weight is force. Okay, weight is the gravitational force. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है कि अर्थ उसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है. दैट इज weight of any object is due to gravitational force. Weight is the force with which any object is attracted towards the earth. That is weight. You know about weight. Second thing, you should know about properties of liquids or fluids. What are fluids? Fluids are those substances that can flow, like liquids and gases. तो liquids और gases में these are also objects, इनका भी weight होता है, इनका इन पर भी फोर्स होता है, बट these are slightly different. What is the difference in the force? In liquids, मान लीजिए बीकर में एक लिक्विड है, ठीक है, तो इट्स लिक्विड का भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट है, राइट. बट सिंस इन एनी लिक्विड all the particles are continuously moving in their movement, so the force is in all directions. ठीक है. So molecules of water exert force on the walls and base, and when a force acts on a plane, on an area, that is called pressure. So pressure is force per unit area. Okay, force per unit area. If force acts in perpendicular direction, that is called thrust. So you can say thrust upon area, right? So in any liquid, pressure acts in all directions. All right. So that is why liquids have properties that they have an upward force, they have an upthrust. As it acts in all direction, there is an upthrust also, not just weight. Upthrust means force in upward directions. Okay. So when any solid is submerged in liquid, it experiences an upward force. That force is called upthrust या फिर buoyant force. Okay, upthrust or buoyant force. This is buoyant force which acts in upward direction, right? And this property of the liquids, fluids, is called buoyancy. Okay, buoyancy is an upward force or upthrust in any liquid or any fluid, right? So this is buoyant force. Now, when any liquid is submerged in water, what happens? This is a solid. इसका mass m है, कुछ भी है. Any mass is submerged in solid. Then its weight will be in downward direction, क्योंकि weight हमेशा gravitational force की direction में होता है, downward direction में होता है. ठीक है. So now there are two forces acting, एक weight और एक upthrust. Right? There is a weight or upthrust. So you can see there is a force in opposite direction of weight. इसका मतलब है उसका जो weight है वो reduce होगा. That is why it is written loss in weight. So Archimedes principle का जो basic point है, it says that when any liquid, any solid is submerged, fully or partially immersed in water, there is loss in weight because of buoyant force. All right. It further says, इसके बाद ही कहता है Archimedes principle that this loss in weight is equal to weight of the water displaced.
मीन्स आपको पता है जैसे ही हम सॉलिड को अंदर डालेंगे वाटर का लेवल ऊपर होगा, वाटर डिस्प्लेस होगा, तो जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट होगा वही उतना ही वेट लॉस होगा या उतना ही फोर्स होगा. यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप थ्रस्ट और बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड या फिर लॉस इन वेट, क्योंकि जितना बॉइंट फोर्स है, जितना फोर्स ऊपर को है उतना ही वेट कम हो रहा है. मान लीजिए 40 न्यूटन इसका वेट है और 10 न्यूटन नीचे से फोर्स हो रहा है, तो लॉस इन वेट कितना हुआ 10 न्यूटन, राइट. 20 न्यूटन नीचे से फोर्स लग रहा है तो लॉस इन वेट 20 न्यूटन. तो बॉइंट फोर्स और लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस. मान लीजिए इसको डालने के बाद वाटर कितना ऊपर आता है इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक जो वेट होगा वाटर का उसके इक्वल होगा. दैट इज सेज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. कैलकुलेटिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस एंड बैलेंस वी आर कैलकुलेटिंग वेट, ओके, बट बैलेंसेस शो मास. तो वट एवर वी गेट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैलेंस में रीडिंग लेता हूँ 43, then its weight will be 43 g, because 43 g means mass into acceleration, that is weight. ठीक है, जो भी आप वैल्यूज लेते हैं उसमें g को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो वेट आपका निकलेगा. ओके, so for this experiment we need some apparatus. Okay, you know about this. This is a solid. You can take any solid, but this is very fixed mass, so we take this. This is called metal bomb. ठीक है, लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी आपने यूज़ किया था. ठीक है, इसके बारे में सबको पता है. दिस इज स्प्रिंग बैलेंस. इट इज़ यूज टू मेजर वेट और मास, राइट. इसमें हम एक नई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम ओवरफ्लो वेसल. ठीक है, ओवरफ्लो वेसल. इसका यूज़ क्या होगा वो आप समझेंगे थोड़ी देर में. ठीक है, और एक बीकर है और थोड़ा सा पानी. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताया. लॉस इन वेट. ठीक है, जब भी हम मैं सॉलिड को वाटर में पुट करूँगा इसका वेट में लॉस होगा. ठीक है, और वो लॉस किसके बराबर है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. तो हमें दो चीज़ें करनी है. पहले हमें देखना है इसका वेट कितना लॉस हुआ है. ठीक है, और वो बराबर होना चाहिए किसके, जो इस वाटर डिस्प्लेस जो होता है उसके, राइट. सो हम नॉर्मल वेट तो इसका कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू चेक एरर. वेरी इंपॉर्टेंट. एरर इसमें दिख रहा है आपको 0 से ऊपर है ना, इसको हम 0 पे लेकर आए. ठीक है, और वैसे हमें एक स्टैंड पर पुट करना चाहिए इसको, बट स्टैंडिंग है तो आप हाथ में भी कर सकते हो. फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए. 0 पर है, 0 पर. ठीक है, नाउ वी विल पुट दिस मेटल बॉब. मेटल बॉब को हम यहाँ पर रखेंगे, इसमें लगाएंगे. ठीक है, तो अभी इसको स्टेबल होने दो थोड़ा. और एनी स्टूडेंट कम इन. लीस्ट काउंट हमने पहले भी काउंट किया है, इसमें 25 तक है. 25 का एक बॉक्स है. 25 में 5 लाइन्स है, मतलब एक जो लाइन है 5 यूनिट्स की, 5 ग्राम्स. ठीक है, कैन यू चेक टोटल वेट मास चेक कर सकते हो. तुम भी आ जाओ इफ यू कैन चेक. सो एज आई कैन सी दिस इज अबाउट 65. सिट डाउन. ओके, दिस इज 65 ग्राम्स, राइट. 65 ग्राम्स में. ओके, 65 ग्राम्स इसका नॉर्मल वेट मास जो है, सॉरी मास इसका एयर में. ठीक है, वी शैल फाइंड आउट इट्स वेट, बीकर वेट, एम्प्टी बीकर. दिस इज एम्प्टी बीकर, सो इट्स वेट इज 41.87. डोंट नोट इट डाउन. 41.7. ओके, 41.7, राइट. देन we shall use this overflow vessel. We have to fill it completely till the first drop falls off from the pipe, like this. Okay, now this vessel is full up to this point. अगर इसमें थोड़ा सा भी वाटर ऊपर जाता है तो वो वाटर इस बीकर में कलेक्ट होगा, and that will be the weight of displaced water. Okay, so we shall again put it like this, hang it and submerge this solid, only solid part, in this beaker. Wait until the last drop stops. Okay, so if we can see in the spring balance its weight has reduced its mass.
now we have to measure its weight. Okay, its weight is about 50 grams. Okay, 50.1 something. Initial weight was 41. The metal bore here was about 65 G. It is 65 G. It's Newton. Okay. When we submerge in water, its weight reduced. Its weight reduced to 57 grams. Sorry, this is not grams. Okay, this is G, acceleration due to gravity. We call it ग्राम फोर्स. ग्राम फोर्स का मतलब होता है न्यूटन ही होता है. ठीक है, ग्राम फोर्स. ठीक है. So now loss in weight will be about 8 newtons in gram. Gram force means Newton, means mass is multiplied by value of G. Okay, this is. Now we have to calculate the weight of the beaker जो हमने अभी find out किया. तो empty beaker जो था that was 43.2 something, right? और जो filled beaker है that was about 0.2. ठीक है, ग्राम था वो, लेकिन हम उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्राम फोर्स, या आप सिंपली न्यूटन लिख सकते हैं. ठीक है, तो दैट विल बी आल्सो 8 ग्राम फोर्स. ओके, सो वी कैन सी दैट लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड 8 ग्राम फोर्स. और यू कैन से 8g न्यूटन. 8 ग्राम फोर्स को आप लिख सकते हो 8g न्यूटन्स, बिकॉज g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऑलराइट, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट कब करेगा, ऊपर कब जाएगा. ये ऊपर कब जाएगा, तब जाएगा जब ऊपर वाला फोर्स, बुओयंट फोर्स ज़्यादा होगा. तो अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स मीन्स वेट, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. अगर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से कम है तो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा, ये डूब जाएगा. ठीक है, और बराबर है दोनों. इस पॉइंट पर फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस. तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा या कम होगा वो हम काउंट करेंगे कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है. तो देखिए, अगर वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज मोर मीन्स बहुत ज़्यादा वेट है उसका, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा पानी है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है वाटर का. और वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा कब राइज होगा, जब जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज किया है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम के बराबर होता है. ठीक है, इट मीन्स अगर इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाई वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, और हाई वॉल्यूम का मतलब है लो डेंसिटी, बिकॉज आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास होगा तो डेंसिटी जो है कम होगी. तो मोर वॉल्यूम मीन्स लेस डेंसिटी. सो फाइनली वी कम टू that if any object is less dense than water then it will float. क्योंकि डेंसिटी कम होगी तो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, और वाटर डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और उससे उसका वाटर का वेट भी ज़्यादा होगा, और वेट ज़्यादा होगा तो buoyant फोर्स भी ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल. राइट, आई शैल रिपीट. If density of any object is low, it means its volume is high. So volume of water displaced is high. So weight of water displaced is also more. It means upward force is also more. ठीक है, so upward force ज़्यादा तब लगेगा जब डेंसिटी कम होगी, और जब डेंसिटी कम होगी मीन्स वो फ्लोट करने लगेगा. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, दैट इफ द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज लेस देन वाटर इट विल फ्लोट. ओके, so for this experiment you have to remember only Archimedes principle, that loss in weight or upward force is equal to weight of the water displaced. Okay, so that we have to find out. This experiment, if we take salty water, हमने नॉर्मल टैप वाटर लिया है, अगर हम और ज़्यादा सॉल्टी वाटर बनाते हैं और सॉल्ट ऐड करके बनाते हैं, मतलब वो ज़्यादा डेंस है. और पानी अगर ज़्यादा डेंस हो इट मीन्स फ्लोट करने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं. इट मीन्स इफ वाटर इज डेंसर देन द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. ओके, इट मीन्स अपवर्ड फोर्स विल बी मोर. अगर वाटर ज़्यादा डेंस है तो अपवर्ड फोर्स विल बी मोर. दैट इज़ वाई इन दैट केस लॉस इन वेट विल बी मोर. अगर हम सॉल्टी वाटर यूज़ करते हैं तो वेट में ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि अपवर्ड थ्रस्ट ज़्यादा होगा, थ्रस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका वाटर इज डेंसर देन द सॉलिड.
Alright, but in this case we are taking tap water only.